Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Students, as you know that we have started a chapter and I gave you the exercise of the lesson number 4, that is pronoun, in which we have studied different kinds of pronoun and specifically we have studied about reflexive and emphatic pronoun, and there were exercises regarding this. Exercise A and B hopefully you have done in your book. I am showing you exercise C, and this is exercise D, and this is the last is exercise E, in which you will have to fill the blanks with suitable emphatic pronoun. Okay, this is your book work. I have shown you the book work. Hopefully you have done it. Now I am going to show you the work which you have done in your notebook. This is the last work which you have done in your notebook, and then we have exercise of lesson number 2. Exercise 1 and 2. These are the exercises you have done in I explained you in language practice. Okay, now I am giving you the practice exercises of lesson number 2, that is revision of active and passive voice. First we have exercise of transform the following sentences into passive voice. आपको किस में चेंज करने हैं? मैंने आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपके पास इम्पेरेटिव भी हैं, इंट्रोगेटिव भी हैं, डिक्लेरेटिव भी हैं. आपको उनको चेंज करना है उनके रिस्पेक्टिव पैसिव वॉइस में. फर्स्ट सेंटेंस इज दैट हु टॉट हर इंग्लिश. The second is, as you know that who taught her English. This is an interrogative sentence. You will have to change into passive voice. Then we have a sentence, do not leave waste on the ground. So this is an imperative sentence. You know what is the formula, what is the structure of imperative sentence. Then we have a sentence, the president appointed me. The second last sentence is, the boys were playing football in the ground. The last sentence is, the shepherd has lost 6 cows. Then we have exercise number 2, transform the following into active voice. His words must be listened by us. आपको इसको किस में चेंज करना है? आपको इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में. ये आपके पास जो द वर्ब विच इज़ गिवन हेयर, द ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब्स हैं, एंड यू नो दैट हाउ टू ट्रांसफॉर्म द मॉडल वर्ब्स इनटू एक्टिव वॉइस. ओके, then we have a next sentence, has the door been shut by you. The third one is, many objections had been raised by you. And then the second last sentence is, by whom was French taught. And the last is, why was this poor woman insulted by you. Okay students, hopefully you will do this exercise. Okay student, this is for these are the exercises. First you will draw the chart of the lesson number 4, the pronoun. First you will write the definition and then you will have to make this chart. Okay, I have already told you in the video to make the chart in the table. This table should be drawn in the notebook. आपको बिल्कुल as it is जो है वो इसको draw करना है. I am showing you. Then we have exercise. It is for your practice. आपको क्या करना है इन दिस एक्सरसाइज? यू विल हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउंस से फिल करने हैं. आपको ये जम्बल्ड वे में दिए में डिफरेंट प्रोनाउंस आपको यूज़ करने हैं. समटाइम इन द ब्लैंक्स you will use personal pronoun, or sometimes you will use demonstrative, some interrogative, reflexive, और जो है वो आपका ये आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन से आप फिल करेंगे. लेकिन प्लीज़ डू इट, फिल द ब्लैंक्स करेक्टली. ओके students, now we are starting a new lesson number 5, that is all about clauses. It is actually, students, this chapter is such a long chapter. There are so many things that needs explanation. And first I divide this chapter into 3 parts. Okay, this is the first part of this chapter in which I am going to explain you
what is phrase, what is clause, what is sentence. I know you have an idea about what is a phrase, what is a clause, and what is a sentence, but today I will explain you again what is how can you differentiate between phrase, clause and sentence. Okay, and then we will analyze a sentence. We will discuss the part of a sentence, and later in the end of this video I will tell you about the forms of subject. So this is the first part of the chapter, lesson number 5, clauses. So let's begin. What is a phrase? अच्छा, यहाँ here I have written on the board. Phrase क्या होता है? What is a phrase? Every group of words means this is not there is not only a word. जब भी हम phrase की बात करते हैं, it is important to have more than one word. ठीक है, या तो 2 words होंगे या more than 2 words होंगे. But what is the another thing is that this is very important. It makes sense but does not express a complete thought. अच्छा, यहाँ पर जब हम when we talk about the phrase, so it does not always give you the complete meaning, complete thought, because a phrase does not have a subject and predicate. It is the part of the sentence that part of any sentence. ये किसी भी sentence का part हो सकता है but does not make a sentence. Okay, ये sentence को बनाने में help कर सकता है, लेकिन ये sentence as a sentence इस्तेमाल नहीं होता. और इसमें सबसे very important thing जो आपकी है, उसमें जो है वो क्या नहीं होता है, verb नहीं होता है. ठीक है, तो लेट्स रिकैप्चुलेट व्हाट फ्रेज इज. के फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एंड फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और बोथ. ठीक है ना, उसमें सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है. अ फ्रेज, और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ फ्रेज डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Okay, and the last thing is that a phrase does not begin with a complete capital letter and end with punctuation mark. इसमें सबसे important बात ये है कि phrase में जो है वो ना ही capital letter से start होते हैं और ना end होते हैं. full stop, question mark या exclamatory mark जो end of the sentence के sentence के आखिर में जो marks use होते हैं वो नहीं इस्तेमाल होते इसमें. So what is this is all about the phrase. So I think you get an idea what phrase is. In some points here, आप देख लीजिए, have a look on these points. सबसे पहले what is the first point here, group of words. अच्छा, ये भी क्या है, clause. What clause is? Clause is also a group of word. And what is the important thing is that it contains a subject and predicate. Predicate मैं आपको बता दूंगी कि क्या होता है, but I think so in class 6 or class 7 your teacher always gave the concept about the subject and predicate, but जो at the beginning of the sentence जो भी चीज़ होती है, चाहे वो noun हो, pronoun हो, infinitives हो, gerunds हो, phrase हो, clauses हो, वो आपका subject होता है. और उसके बाद जो जितना भी आपका remaining from verb till end of the sentence तक जितना भी आपका part होता है वो आपका क्या होता है, predicate होता है. इसके अलावा इस clause में जो है sometimes जो है convey a complete thought. अब यहाँ आई हैव यूज द वर्ड समटाइम्स. मैंने समटाइम्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि कभी कभी जो है ये इनकम्प्लीट सेंस भी देता है, बिकॉज जब ये इनकम्प्लीट सेंस देता है तो यहाँ पर जो है वो क्लॉजेस को मैं फिर डिवाइड करके आपको इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा जो है द सेकेंड इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, लेकिन जो क्लॉज और सेंटेंस में फिर आपको डिफरेंस भी क्योंकि सेंटेंस ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो आप द पॉइंट कम्स इन आवर माइंड कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस. तो क्लॉज जो है वो सेंटेंस ही की तरह होता है, लेकिन समटाइम इट कन्वेज अ इनकम्प्लीट थॉट और समटाइम इट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट. ठीक है, और इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ सेंटेंस होता है, और ये एक्ट कर सकता है एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव. यानी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं हमारे पास, वी हैव अ नाउन क्लॉजेस, वी हैव अ एडवर्ब क्लॉजेस. तो हम ये कह सकते हैं जो क्लॉजेस होते हैं दे कैन एक्ट एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव. आपके टॉपिक्स भी हैं, आपको उसमें भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्लॉज में हमारे पास क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक एग्जाम्पल देती हूँ. इफ़ आई वर्क हार्ड, so tell me, if I work hard, what is the subject and what is the predicate? Yes, I is the subject and work hard is a predicate.
But does it, the next question is that, does it give the complete sense, complete conveys a complete thought? If I work hard, अगर मैं मेहनत करती हूँ, so what do you think? It has a subject and predicate, but does not giving a complete thought. So it will be a clause, but not it will be a dependent clause होगा. ये कैसा clause होगा आपका? ये dependent clause होगा. अब another example of clause is I work hard. If I say like this, I work hard, तो it has a subject, it has a predicate, तो it is a clause. लेकिन ये complete meaning, complete thought को convey कर रहा है. So what it will be independent clause. So these are the two types of clauses. So there is a difference between the clause and sentence. Sentence में हमारे पास जो है वो क्या चीज़ होती है? What is important thing? It is also a group of words. It also has a subject and predicate like clause. Clause की तरह ही होता है. And always here I am not writing sometime. It always conveys a complete thought. यानी हमेशा ये जो है वो complete meaning, complete sentence को बताएगा, makes a sensible sentence, sensible meaning बताएगा. And other thing is that made up of one or more clauses, and in a sentence there is a chance to have one clause to have more than one clauses. ठीक है, इसके अंदर एक clause भी हो सकता है और दो clauses भी हो सकते हैं और more than two clauses भी हो सकते हैं. There is a chance to have a one or more clauses. ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमेशा जो है ये इट स्टार्ट the sentence always start with the capital letter or ends with full stop, question mark or exclamatory mark. So these are the end marks that always come at the end of the sentence. या तो full stop आएगा या question mark आएगा या exclamatory mark आएगा. अच्छा, one thing I told you in clauses कि clauses जो हैं can be act as a noun, as a adjective or adverb. लेकिन sentence do not act as a noun, as a adverb or as an adjective. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. सेंटेंस कभी भी एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव नहीं होता. हाँ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब उनके पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो क्लॉजेस आपको समझ में आ गया. व्हाट द फ्रेज इज, व्हाट द क्लॉज इज एंड व्हाट इज द सेंटेंस. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस. ट्राई टू comprehend whatever I explain you. Now the second thing which is important to tell you to analyze this analysis of a sentence. How can we analyze a sentence? In simple, for the beginners, we divide the sentence into two parts. A sentence has two parts, subject and predicate. I have written the example under these two parts. बहुत ही simple मैंने आपको एक sentence लिया है जिसमें एक subject है और एक predicate है. So can you anybody tell me what is the how many clauses are there? Sarah made pudding. ठीक है, व्हाट इज द, आपको ये बताइए मुझे कि यहाँ पर कितने क्लॉजेज होंगे. You can tell it easily because there is only a subject and there is only a predicate. When we have a one subject and one predicate, it means that we have only one clause. अच्छा, ये clause तो है लेकिन ये क्या है? Because it gives a complete meaning, it gives a complete thought, complete sense दे रहा है. Begins with a capital letter, ends with a full stop. तो ये आपका क्या बन जाएगा? This is a clause, but it is basically a sentence. ठीक है, sentence has a clause but not every clause is a sentence. ये बात आप याद रखिएगा कि हर सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है बट नॉट एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस. लेकिन हर क्लॉज जो है वो क्या नहीं होता? सेंटेंस ही होता. ठीक है, इसके अलावा भी प्रेडिकेट के साथ हमारे पास कुछ फ्रेजेस भी आगे हम लगा देते हैं. एडवर्बियल फ्रेजेस लगा देते हैं, टाइम के एक्सप्रेशंस लगा देते हैं टू मेक आवर सेंटेंस. उसको लंबा करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए, टू एक्सटेंड द सेंटेंस. तो वो और भी चीज़ें होती हैं लेकिन बेसिकली जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के अंदर आपका कहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद योर वर्ब, और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होगा. सब्जेक्ट में आपका ये यहाँ पर द सब्जेक्ट कैन बी अ डूअर. आपने अभी लास्ट बिल्कुल ही रिसेंटली आपने जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है. तो योर सब्जेक्ट कैन बी अ डूअर और सम टाइम इट कैन बी अ रिसीवर. ठीक है, it depends on the nature of the sentence. Then we have, अच्छा, what is the new thing for you? Maybe we have experienced all these sentences but we never noticed
हमने कभी नोटिस नहीं किया होगा तो कि हमारे पास इतनी, हम तो समझ रहे हैं कि वी हैव ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेस पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नो, देयर आर 4 अदर थिंग्स दैट कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होती हैं। एंड व्हाट आर दीज? ये दिस इज द फर्स्ट, सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या क्या यूज हो सकता है? फर्स्ट इज नाउन। I have written the example here. Ali felt happy. As you notice, what is the subject here? Ali. And Ali is what? Ali is a noun. And what is the predicate here? Felt happy. Felt happy. So this is predicate. And this is a sentence because it starts with the capital letter, ends with full stop, and it is group of words, make complete sense, and it has a subject and predicate. ठीक है? ये हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, आई एम एक्चुअली एनालाइजिंग द सेंटेंस। ठीक है, मैं एनालाइज कर रही हूँ कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो मैं, ये चीज़ होती है एनालाइजेशन होती है ये। देन वी हैव अब सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ सकता है? it comes here sometimes a pronoun instead of noun. Noun की जगह क्या आ जाता है? pronoun आ जाता है। As you can see in the example, she got the first prize in the speech competition. So what is the subject here? She is the subject, and got till competition there, the whole group of word is a predicate. ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट है। शी आपका क्या है? प्रोनाउन है, यूजिंग एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। ये तो बहुत इजी थी, यू आर क्वाइट फेमिलियर अबाउट दीज 2 फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। द थिंग इज इन्फिनेटिव, यू हैव अ चैप्टर, यू हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल के बारे में है, वो हम पढ़ेंगे तो आपका इट विल बी मोर क्लियर, आपको बहुत और क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव एक्चुअली ये होता है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है दैट डज नॉट शो द टाइम। एंड एक होता है हमारे पास में फुल इन्फिनेटिव होता है और एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। एंड एज आई टोल्ड यू इट नीड्स अ कंप्लीट डिटेल। मैं आपको उसकी डिटेल में नहीं लेकर जाना चाह रही, पर इन्फिनेटिव की को इजीली आइडेंटिफाई करने कैसे कर लेते हैं, जो फंडामेंटल इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं या फुल इन्फिनेटिव जिसे कहते हैं, उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि वी हैव अ बेस फॉर्म आफ्टर टू के साथ अगर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो वो क्या यूज होता है? इट इज यूज एज अ इन्फिनेटिव। और ये जो इन्फिनेटिव होता है इट कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, इट कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्फिनेटिव की प्लेसेस होती हैं, यूजेज होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज एक टॉपिक है ये इन्फिनेटिव आपकी बुक में। सो इट what is the topic of discussion is that कि जो infinitive होता है वो भी at the place of the subject आता है। as you can see here, to have the poor gives us satisfaction. तो what is to have? To have it is coming at the place of the subject, तो ये आपका क्या है? ये infinitive can be used as a subject। ठीक है, to have the poor का मतलब है गरीबों की मदद करना, gives us satisfaction, उसको क्या देता है? satisfaction देता है। Now we have another form of subject that is gerund. अब gerund, what is gerund? When ing form, verbal noun जिसे कहते हैं, because gerund is a ing form and but act looks like a verb but act as a noun। ठीक है, लगता है ये verb की तरह है लेकिन act कैसे करता है? ये noun की तरह करता है। और ये भी जो है आपका जो gerund है वो भी किसकी प्लेस पे आ सकता है? It can be used as a place of the subject। जैसे आपके सेंटेंस में दिया हुआ है swimming is good for health। So what is swimming here? It is not a verb, ये verb नहीं है because it looks like a verb लेकिन acting as a noun। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह है। स्विमिंग का मतलब यहाँ पर तैरना, एक जो है वो क्या है? इज गुड फॉर हेल्थ, बहुत जो है वो क्या है? अच्छा है सेहत के लिए। व्हाट इज द वर्ब हियर? इज है। तो इज गुड फॉर हेल्थ इज अ प्रेडिकेट एंड स्विमिंग इज अ सब्जेक्ट। नाउ वी हैव अ फ्रेज। we have a noun phrases, we have an adjective phrase, we have a adverb phrase होते हैं। ठीक है, जो नाउन फ्रेज होता है उसकी नाउन फ्रेज में क्या है? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन वो कैसे एक्ट कर रहे होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो एक्ट कर रहे होते हैं एज ए नाउन। और ये नाउन फ्रेज जो है वो हमेशा किसकी शुरू, जब अगर प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो कहते हैं ये सब्जेक्ट की प्लेस पे भी आ सकता है एंड इट कैन कम्स एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो भी चीज़ आपकी नाउन होती है तो उसकी 2 पोजिशन तो आप याद रखिए कि वो या
या फिर सब्जेक्ट की प्लेस पे भी आ सकती है या फिर वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी आ सकती है, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी बन सकता है। बहरहाल ये आपकी आगे की चीज़ें हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है ऑल हिज फ्रेंड्स जो है वो आपका फ्रेज़ है, और ये कैसा फ्रेज़ है, ये नाउन फ्रेज़ है, और ये क्या किस तरह एक्ट कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। और बाकी जो डिक्लेयर हिम ऑनेस्ट, ये आपका क्या है, आपका प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में आप नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पर व्हाट इज देयर इज अ वर्ब, आपका वर्ब दिया हुआ है, उसके बाद जितना भी रिमेनिंग पार्ट है इट विल बी इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट। देन वी हैव अ क्लॉज, जैसे मैंने आपको बताया था नाउन फ्रेज है, इसी तरह हमारे पास नाउन क्लॉज होता है। क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें इट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट समटाइम्स गिव कन्वे अ कंप्लीट थॉट एंड समटाइम्स डज नॉट गिव द कंप्लीट थॉट। तो आप देख लीजिए कि वॉट एवर ही टोल्ड मी, आपको यहाँ सब्जेक्ट भी मिलेगा, आपको यहाँ प्रेडिकेट भी मिलेगा, अगर नोटिस करें। लेकिन दिस क्लॉज इज एक्चुअली नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, बिकॉज इट नीड समथिंग एल्स टू एक्सप्लेन इट। इसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है ताकि उसको एक्सप्लेन किया जा सके। वो दूसरी चीज़ क्या है, वॉज अ लाई, वॉट एवर ही टोल्ड मी, जो कुछ उसने मुझे बताया वॉज अ लाई, वो झूठ था। सो नाउ इट इज़ गिविंग द कंप्लीट सेंटेंस। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया है, ये सेंटेंस हो गया है, लेकिन ये जो था वॉट एवर ही टोल्ड मी आपका क्या था, क्लॉज था, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस में देखें आपके पास व्हाट से स्टार्ट, डब्ल्यू कैपिटल है आपका और एंड्स विद फुल स्टॉप हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल थी क्लॉज की, लेकिन कौन सा क्लॉज था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाउन क्लॉज की बात कर रही हूँ, दैट कम्स एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। इसी तरह मैं यहाँ पर नाउन फ्रेज की बात कर रही हूँ, ये आईएनजी फॉर्म जो है आप देख लीजिए, एक्टिंग लुक्स लाइक अ वर्ब लेकिन एक्टिंग एज अ नाउन। इसी तरह ये भी आपको ऐसा लगेगा कि वर्ब है लेकिन ये किस तरह एक्ट कर रहा है, ये आपका एक्ट कर रहा है नाउन की तरह, और इट इज कमिंग एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ऑल अबाउट द टॉपिक कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने क्लॉजेस से स्टार्ट करना था, इट इज लेसन नंबर 5। उसमें हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस एंड देन वी एनालाइज द सेंटेंस। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी। आपको नाउन और प्रोनाउन से आप फैमिलियर थे, इंफिनिटिव, जेरेड, फ्रेज और क्लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इंशाल्लाह ताला, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, आपको समझ में आया होगा। So what is the homework for today? You will have to complete the exercises given in the notebook. आपको जो notebook में मैंने आपको show की थी, you will have to complete this exercise. Hopefully you will do it. Being a good student, you must complete your work on time. And inshallah ta'ala we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.